مسیح خداوند کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ٹورانٹو سے پادری عمیر چوہان آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں، اور جس طرح سے روزوں کے ایام ہیں اور ان مقدس ایام میں ہم نئے مختلف کرداروں کے بارے میں پرانے عہد نامہ میں سے سیکھا ہے، اور روزے کے مقاصد، روزے کے اوقات، روزوں کے متعلق بہت ساری باتوں کو سیکھا ہے کہ کن مقاصد کے لیے ہم روزوں کو رکھ سکتے ہیں اور کتنی دیر تک کے روزے اور کس کس لحاظ سے روزے رکھے گئے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو آج جن آیات کا چناؤ میں نے بائبل مقدس میں سے پرانے عہد نامہ میں سے کیا ہے وہ ہے آستر کی کتاب میں سے، آستر کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت، اور اسی کے ساتھ آستر کی کتاب 4 باب 16ویں آیت، آخر میں جو ہے وہ آستر کی کتاب 9 باب اور اس کی 31ویں آیت پر آج ہم غور کریں گے۔ آستر کی کتاب بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کے 10 ابواب ہیں اور آپ نے ضرور اس کا مطالعہ کیا ہوگا۔ ان 10 ابواب میں ہم مختلف باتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری ایک سٹوری کی شکل میں جو ہے وہ خدا کے پاک کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے، آپ ضرور اس کو پڑھیے گا۔ یہ ساری جو واقعات اس کتاب میں مندرج کیے گئے ہیں، یہ فارس کے بادشاہ کے محل میں رونما ہوئے اور اس محل سے باہر رونما ہوئے، اور آستر کی کتاب میں ہمیں یہودی مردکی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ آستر کا پتہ چلتا ہے جو کہ یہودی عورت تھی، اس نے اپنے جرات اور اپنی قوم کو دشمنوں کے ہاتھ سے بچایا ہے۔ اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حمان کریکٹر جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ اس کتاب میں ہمیں یہودیوں کی نام و نشان کو جو ہے وہ اس وقت مٹا ڈالنا چاہتا تھا، لیکن ملکہ آستر جو ہے مردکی، ان کے وسیلہ سے خدا نے جو ہے وہ کام کیا اور ان کے وسیلہ سے یہودی قوم بچ سکی۔ اس کے علاوہ آستر کی کتاب میں ہمیں عید پوریم کا بھی ذکر ملتا ہے، اور پور کا مطلب ہے کہ قرعہ ڈالنا، اور پوریم جو ہے وہ ایک عید کا دن مقرر کیا گیا جب سب یہودی یہ یاد رکھیں کہ ان کی جان بخشی گئی اور ان کے خلاف جو منصوبہ باندھا گیا تھا ان کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کا، اس کو ملکہ آستر اور ایک یہودی شخص مردکی نے اور دعا اور روزے کے وسیلہ سے جو ہے وہ کیا، اور یہودی قوم اس وقت بچ نکلی۔ اس لحاظ سے ہمیں اس کتاب میں یہودی عید کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے پہلے 4 آیت پڑھوں گا، 4 باب کی پہلی آیت پڑھوں گا، تو اس میں لکھا ہے، جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا، اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا، کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا، اور ہر صوبہ میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا، اور بتیرے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے۔ یہاں خدا کے پاک کلام میں ہمیں ایک بڑے ماتم کا منظر نظر آتا ہے، جس میں یہودی قوم جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے اور ماتم ہے اور رونا ہے، اور کیونکہ ان کے لیے قتل کا آرڈر جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے آ گیا ہے، نہ صرف ایک صوبے میں بلکہ تمام صوبوں میں یہ حکم جاری کر دیا گیا حمان کی طرف سے، جس نے بادشاہ سے اس بات کا فرمان لے لیا تھا کہ تمام قوموں میں سے یہودیوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو اس لحاظ سے یہودی جو ہیں وہ ہر جگہ پر انہوں نے ٹاٹ پہن لیے اور راکھ پر بیٹھ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ عاجزی اور انکساری اختیار کی، اور کپڑے اتار کر انہوں نے ٹاٹ اوڑھ لیے، راکھ اپنے سروں پر ڈال لی۔ اور تو یہاں پر ہمیں روزے کے متعلق ایک بڑی اہم بات نظر آتی ہے کہ جب لوگ دکھ اور تکلیف کی حالت میں تھے تو یہودی
कौम ने ये मुनासिब जाना कि वो रोज़ा रखें, अपनी जान की बख्शिश के लिए रोज़ा रखें। यहाँ पर हमें 2 किस्म के रोज़े इस किताब में नज़र आते हैं। एक तो रोज़ा अपनी जान की बख्शिश के लिए रोज़ा, और दूसरी बात लोगों ने मलका आस्तर के लिए रोज़ा रखा कि खुदावंद उसके वसीला से हमें सलामत रखे, खुदा हमें हमान के हाथ से बचाए। तो इस लिहाज से हमें इस किताब में 2 तरह के रोज़ों का जिक्र मिलता है। और अगर अब आप आस्तर की किताब का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आस्तर, जो कि एक यहूदी औरत थी, मलका के रुतबे तक पहुंची। और जब मलका आस्तर, जो कि एक यहूदी खातून थी, जब उनको ये मालूम हुआ, जब उनको ये बात का पता चला कि यहूदी कौम ख़तरे में है, यहूदी कौम जो है मुसीबत में है और यहूदी कौम जो है उनको ख़त्म कर देने का ऑर्डर जो है बादशाह की तरफ से जारी हो चुका है, तब मलका आस्तर ने, अगर हम चौथे बाब की 16वीं आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है, तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 दिन तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां भी इस तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। तो यहाँ पर हमें मलका आस्तर की एक बड़ी दलेराना बात मिलती है। उन्होंने बड़ी दलेरी का इजहार अपनी कौम के लिए किया है। पहले तो उन्होंने 3 दिन के रोज़े की मुनादी करवाई है कि 3 दिन तक का रोज़ा। हमें यहाँ पर एक और रोज़े का जिक्र मिलता है जिसमें 3 दिन का रोज़ा रखा गया है, जिसमें ये मुनादी करवाई गई है कि मैं और मेरी सहेलियां जो हैं वो रोज़ा रखेंगी, ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, और इसी तरह से मैं बादशाह के हुजूर खुद जो है वो पेश होंगी। अगर मैं हलाक हुई तो हुई। तो इस बात से हमें इस बारे में पता चलता है कि वो अपनी कौम के लिए इस कदर फ़िक्रमंद है कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं। बादशाह के हुक्म के ख़िलाफ़ उसके महल में उसके सामने हाजिर होना जो है वो उसके लिए ऑर्डर था कि अगर कोई बादशाह की इजाज़त के बगैर उसके महल में दाखिल हो जाए तो उसको कत्ल करने का ऑर्डर था। लेकिन वो इस बात को सामने ना रखते हुए, अपनी जान की परवाह ना किए हुए भी उसने रोज़ा रखकर जो है वो बादशाह के हुजूर में हाजिर हुई। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रोज़े के अंदर एक बड़ी कुव्वत और ताकत है। खुदा ने बादशाह के दिल को तब्दील किया जब 3 दिन का रोज़ा रखा गया, जब कौम ने रोज़ा रखा, जब मलका आस्तर ने रोज़ा रखा, जब मलका आस्तर की सहेलियों ने रोज़ा रखा, तो उस रोज़े का नतीजा हमें नज़र आता है कि वो सिर्फ मातम ही नहीं कर रहे बल्कि उन्होंने खाना पीना छोड़कर खुदा के हुजूर में फरियाद की, और उस रोज़े की हालत में मलका आस्तर जो है वो बादशाह के हुजूर में हाजिर होती है और खुदा जो है बादशाह के दिल को तब्दील करता है। और आगे अगर हम और चैप्टर पढ़ते जाएं तो सारी बात बड़ी ही वाज़े और क्लियर हमारे सामने हो जाती है कि रोज़े का असल में नतीजा क्या निकला और बादशाह का दिल किस तरह से खुदा ने तब्दील किया और किस तरह से यहूदी कौम जो है वो बच निकली। और अगर हम आखिर में इस किताब के आखिर में 9वें बाब की 31वीं आयत देखें तो वहाँ पर पुरीम के दिनों का जिक्र हमें मिलता है, और ये यहूदियों के लिए मुकर्रर किया गया एक वक्त था कि लोग जो है वो नस्लदार नस्ल इस बात को याद रखें, और हर साल इन दिनों को मुकर्रर किया गया कि वो इन दिनों को मनाएं। और जिसमें अगर हम 31वीं आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है ताकि पुरीम के इन दिनों को उनके लिए मुकर्रर वक्त के लिए बरकरार करे जैसा यहूदी मर्द की और आस्तर मलका ने उनको हुक्म किया था, और जैसा उन्होंने अपने और अपनी नस्ल के लिए रोज़ा रखने और मातम करने के बारे में ठहराया था। तो यहाँ पर
32वीं आयत भी पढ़ दूंगा। वहाँ पर लिखा है, और आस्तर के हुक्म से पुरीम की इन रस्मों की तस्दीक हुई और ये किताब में लिखा गया। तो ये रस्म हमें वहाँ पर नज़र आता है कि वहाँ पर ईद पुरीम का ज़िक्र हमें मिलता है, जब यहूदियों को दुनिया से नेस्त व नबूद करने का प्लान बनाया गया, लेकिन मलका आस्तर ने, उनकी सहेलियों ने और तमाम यहूदियों ने रोज़ा रखा, और मलका ने ये कहा कि मेरे लिए रोज़ा रखो। यहाँ पर एक बात हमें नज़र आती है कि हम किसी एक मकसद के लिए तमाम इकट्ठे होकर रोज़ा रख सकते हैं, जिसको खुदा नज़र में लाता है, जिसको खुदा सुनता है और उस रोज़े को खुदा कबूल करता है। तो आज रोज़े के मुतालिक हमने मलका आस्तर की किताब में से 2 चीज़ों को सीखा है। पहली बात, हम किसी एक ख़ास मकसद के लिए, किसी के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं, अपने बादशाह के लिए, अपने आला हुकाम के लिए, अपनी कौम के लिए, और अपनी कौम के लिए हमें फ़िक्रमंदी का इजहार करना चाहिए। अपनी कौम के लिए भी रोज़ा रखें कि खुदा हमें, जिस तरह से खुदा ने बनी इसराइल को, यहूदियों को जो है वो बचाया है, इसी तरह से खुदा हमें भी जहाँ पर हम हैं, हमें दुश्मन के हाथ से छुड़ाता है, बचाता है। हम किसी एक मकसद के लिए इकट्ठे होकर किसी एक शख्स के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं, और उसके अलावा अपने लिए भी रोज़ा रख सकते हैं कि खुदा हमें जो है वो महफूज रखे, खुदा हमें जो है वो सरबुलंदी जो है वो अता फरमाए, और खुदा हमें सरफराज करे। तो आज की किताब में से हमने रोज़ों के मतलब इन बातों को सीखा है। खुदा ने इन बातों के वसीला से हमें कलाम के पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और खुदा हमें इन रोज़ों के अयाम में और बरकत बख्शे। आमीन।